Hello, this is Anushka from Inspire with Anushka channel. How are you students? Hope you all are fine. Students, in today's video I am going to discuss about the small intestine, because after the stomach in the alimentary canal the organ which come is the small intestine, where the process of digestion and absorption completely occurs. Because the process of digestion starts in the mouth only, because we have the salivary glands and saliva which mix with the food and break down, our teeth break down the food into the smaller pieces. So that's why we can say that the digestion process starts from the mouth and it will end in the small intestine, because after small intestine the large intestine just have the process of absorption of water, that is called the assimilation of the substance or the nutrition. So in the today's video is very important, because this the part which small intestine plays in the alimentary canal or in the digestive system of human is the most important thing. And small intestine is also known as the sites where the process of absorption and digestion completes, because always the question in the MCQ is going to be asked from you all that where the digestion process occurs. So you will have to put or tick out in the option the small intestine. So guys, without doing any delay, let's start to discussion, and let's have a first look over the diagram of the small intestine. Guys, this is the pic of whole digestive system, or called the alimentary canal, that starts from the mouth and ends at the anus, and inside only this canal the process of whole digestion completes. It means the process of ingestion that occurs through the mouth, the process of digestion that occurs in the stomach and small intestine, then after the absorption which occurs in the small intestine, and assimilation which occurs in the large intestine, and then after the egestion process, that means excreting out the undigested food, which occurs through the rectum. Okay, so today we are going to discuss about the small intestine, because after the stomach the canal enters or open into the small intestine, and which is the most essential part of the human digestive system. So guys, let's start talk about the small intestine, its length, how it performs the work, and what type of digestive enzymes that it secretes, which are mostly essential for the digestion of food. Okay guys, so let's have a look over it. So as we have seen in the previous pic also, that small intestine is a coiled, very much coiled tube-like structure that is being enclosed with the large intestine. Okay, so the length of small intestine is 6 to 7 meter long and 2.5 centimeter in diameter. Length of the small intestine is much more than the length of the large intestine inside our alimentary canal, but then after also the small intestine is why called small? So because of its diameter, इसकी जो मोटाई होती है पाइप की, वो लार्ज इंटेस्टाइन की पाइप की जो डायमीटर है वो ज़्यादा होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की स्मॉल होती है, और डेट्स वाई इसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं. अदरवाइज जो लेंथ वाइज अगर हम डिस्कस करें, लेंथ वाइज अगर हम देखें तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन से कहीं ज़्यादा लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का आई थिंक 1/3 पार्ट कंज्यूम करता है. When I have started the digestive system, when we are talking about the alimentary canal, then I said you that approximately that is 9 to 10 meter long, and here you can see that 6 to 7 meters. So most of the part of the alimentary canal is included inside the small intestine, and I enriched you with the information that the diameter of the small intestine is very small, and that is it is called small. That's why it is called the small intestine. And the lumen, it means the whole, that canal portion that is much more thicker, or the diameter of that canal is more in large intestine, and that's why it is called large intestine. So whenever anyone asks you the question, so being the length of small intestine is so long, and then after also why we call the small intestine as a small intestine, why not it is called large intestine? Because it is larger in length than the small intestine. Okay guys, so we have discussed about the length, and इसको लेके जो arguments होते हैं, जो कंट्राडिक्शन है, उस पे भी हमने डिस्कस किया कि कोई अगर आपसे पूछ दे कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कहीं ज़्यादा है. लेट्स डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि ड्यूडेनम फर्स्ट आता है,
उसके बाद ड्यूडेनम आते हैं और तब इलियम आते हैं। ओके, सो ड्यूडेनम में क्या होता है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज इनिशियल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है और ये सी शेप का होता है। ड्यूडेनम से ही प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का स्टार्ट हो जाता है। ओके गाइस, सो ये सी शेप में होता है और यहाँ पे हम लोगों ने जब स्टोमच का देखा था तो स्टोमच में हमने डिस्कस किया था कि जब स्टोमच का जो पाइलोरिक पार्ट है वो ड्यूडेनम से ही जुड़ता है। ड्यूडेनम और पाइलोरिक के बीच में ही गैस्ट्रिक जूसेस और पैनक्रियाटिक जूसेस जो हैं उनका डक्ट कंबाइंडली आकर ओपन होता है। सो हमेशा ड्यूडेनम में जो प्रोसेस होती है इसमें जो बाइल डक्ट्स और पैनक्रियाटिक डक्ट्स होते हैं मिल रहे हैं और इन्हीं केमिकल से, जो केमिकल्स बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट सिक्रीट कर रहा है उसके साथ जो ड्यूडेनम के वाल से सिक्रीशन हो रही है वो मिलकर क्या कुछ एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि डाइजेशन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है और नेसेसरी है। दैट इज द फर्स्ट वन इज ट्रिप्सिन बनाते हैं, देन आफ्टर एमाइलेज और लाइपेज। इन तीनों का फॉर्मेशन डाइजेशन जो है वो ड्यूडेनम में होता है। ड्यूडेनम में 3 एंजाइम्स सिक्रीट्स होते हैं, दैट इज ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। So we will look one by one that what different function that is performed by trypsin, amylase and lipase। क्यों इनका सिक्रीशन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये क्या वर्क करते हैं। सो ट्रिप्सिन जो है कुछ प्रोटीन्स जो थे उनका डाइजेशन स्टोमच में हो चुका था और जो भी बचे हुए प्रोटीन्स हैं जो कि नहीं डाइजेस्ट हो पा रहे हैं वहां स्टोमच से, तो क्या होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। बिकॉज हम लोग पेरिस्टालसिस मूवमेंट पढ़ा है हमने ओसोफेगस के टाइम में, हमारा एलिमेंट्री कैनाल खुद ही फूड को अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करवाने में कैपेबल है। सो दैट इज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जो मस्कुलर वाल्स जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के वो कैपेबल है इस मूवमेंट के लिए। सो फूड क्या होता है या डाइजेस्ट हो कुछ पार्ट स्टोमच में जितना टाइम उसे रहना है, प्रोटीन का जितना डाइजेशन उसमें हो पाता है वो होता है, एंड द रेस्ट रिमेनिंग इज देन आफ्टर gone into the small intestine canal। and here ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि मिक्स होता है फूड के पास और जिस फूड में प्रोटीन जो रिमेनिंग होते हैं अगर फूड में, तो ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करके और फिर पेप्टोन्स आगे फर्दर जाके अमाइनो एसिड्स के रूप में कन्वर्ट होकर और स्टोमच में या फिर फूड मटेरियल के साथ रहते हैं, जिनका कि नेक्स्ट जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, वहां जाकर उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। देन द सेकेंड एंजाइम इज एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, कन्वर्ट करता है अनडाइजेस्टेड स्टार्च को माल्टोज में। हालांकि कुछ स्टार्च माल्टोज में हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा हमारे माउथ में ही, जैसे हम फूड को चबाते हैं और उस समय जो स्लाइवा मिक्स होता है फूड में वहीं पे माल्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट रिमेनिंग स्टार्च जो बचे हुए हैं, क्योंकि हमें फूड से क्या करना है, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है हमें एब्जॉर्ब करना है। सो बचे हुए जितने भी न्यूट्रिशन और जितने भी मटेरियल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन करना है। तो डेट्स वाई डाइजेशन जो प्रोटीन का पहले हो चुका था, स्टार्च का भी हो चुका था माउथ में, फैट्स का भी हो चुका था, बट फिर भी जो रिमेनिंग बच जाते हैं उन सब के लिए ही इन एंजाइम्स का होना इम्पॉर्टेंट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो एमाइलेज क्या कर रहा है, बचे हुए स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करके रख रहा है। देन आफ्टर द लास्ट वन इज द लाइपेज। लाइपेज कन्वर्ट्स फैट्स इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मैंने डिस्कस किया था कि प्रोटीन बचता है, प्रोटीन का भी पहले हमने स्टमच में देखा था, स्लाइवा के थ्रू माल्टोज में कन्वर्ट होता था, माउथ में भी ये प्रोसेस डाइजेशन का हुआ था, और स्टार्च का भी हमने स्टमच में पढ़ा था कि कुछ फैटी एसिड्स जो है उनका डाइजेशन स्टमच में ही होता है, किसमें, तो ग्लिसरॉल या फिर फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ भी जो बचे हुए थे उनका भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ही कन्वर्सन हो रहा है, बट इसके लिए हमें स्पेशली एक एंजाइम चाहिए, तो ये लाइपेज है। जो भी प्रोसेस स्टोमच में नहीं हो पाए, जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल्स जो है, जो भी नॉरिशमेंट का जो मटेरियल वो अगर स्टोमच में डाइजेस्ट नहीं हो पाए, बचा हुआ है, तो उसी का डाइजेशन जो होता है वो ड्यूडेनम में होता है। डेट्स वाई फाइनल टच, फिनिशिंग टच जो देखना होता है कि डाइजेशन फूड का हुआ या नहीं, अगर तब तक भी डाइजेशन नहीं हुआ तो इन एंजाइम्स के हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन ये वर्क लास्टली परफॉर्म करता है और एक फिनिशिंग टच देता है इस प्रोसेस को। सो डेट्स वाई हम कहते हैं कंप्लीटली कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है।
सो द नेक्स्ट वन इज ड्यूडेनम, दैट इज द सेकेंड मिडिल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बहुत शॉर्ट होता है और बस ये मिडिल पार्ट है, इतना ही इसके बारे में, क्योंकि इसमें कोई मेन फंक्शन नहीं होता है। द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज द इल्यूम, एंड ये सबसे लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसमें मेजर प्रोसेस डाइजेशन फूड का जो होता है, इसमें इनर लाइनिंग जो होते हैं, जो कैनाल का जो इनर वॉल है, ये आउटर वॉल हो गया और ये भी आउटर वॉल हो गया। इसमें जो इनर वॉल्स होते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में मॉडिफाइड रहते हैं, यानी इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, बिकॉज अब जो प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है दैट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑलरेडी बीइंग completed into inside the stomach and the remaining completed inside the duodenum. Okay, but question जब भी पूछे कि डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है तो you will provide the answer in the small intestine. Okay, and next अगर absorption का पूछे तब भी small intestine आते हैं, because जो इल्यूम का पार्ट है वो absorption का प्रोसेस करता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में क्यों इनर वॉल कन्वर्ट होते हैं, तो इनका रीजन यही है कि ये एरिया इंक्रीज करते हैं। जो सरफेस एरिया होता है इनर वॉल का, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा इनर वॉल में सेल्स होंगे, और सेल्स होने के साथ साथ ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज भी होंगी। तो ये ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगे, जिस भी फूड में न्यूट्रिशन जो भी था, जैसे हमने जो प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज किया, अमाइनो एसिड में चेंज किया है, या फिर जो माल्टोज है, ग्लिसरोल है, जो भी कन्वर्ट हुआ था, उन सारे केमिकल्स को क्या करेंगे, ये जो इनर वॉल्स है it start absorbing. So the inner wall of the this that is converted into the finger like projection, और इस finger like projections को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें ही विली बोलते हैं। ओके गाइज, सो ये जो विली है ये एब्जॉर्ब, इनके जो वॉल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं जितने भी न्यूट्रिशन है उनका। Villi contains blood capillaries and lymph vessels. Villi increase the surface area of the absorption. तो इससे बहुत सारे मेन पॉइंट्स आपको मिल जा रहे हैं। मैंने इसी टाइप से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर ही किया है कि जितने भी इम्पोर्टेंट जो एसेंस है इस टॉपिक का, जो नॉरिशमेंट है इस टॉपिक से, वो आपको मिल जाए। ओके गाइज, सो कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं जिनका की सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के इल्यूम में होता है। और ऐसे एंजाइम्स का जो एग्जाम्पल है, सीन है, माल्टोज है, लैक्टेज है, सुक्रोज है, लाइपेज है, तो इन सब का भी अलग अलग फंक्शन है। जैसे हम अभी इसमें तो मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज दैट इज अ वेरी माइन्यूट थिंग्स, और ये आपको फर्दर पढ़ना है अगर आप हायर स्टडीज करते हो बायोलॉजी से, देन आफ्टर यू विल हैव टू फेस दिस टॉपिक अगेन, because class by class the topics comes into the elaborated form. Okay, हम माइन्यूट चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही क्लास हमारा आगे होता है, या फिर हम नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो यही होता है फिर। ठीक, तो अभी मैं ऐसे ही, इसमें मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है बट मैं डिस्कस कर लेती हूँ। इरिप्सिन जो क्या करता है, ये ब्रेक करता है पेप्टोज को अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, जैसे कुछ पेप्टोज जो थे उनका अमाइनो एसिड में कन्वर्शन ट्रिप्सिन के थ्रू हुआ था ड्यूडेनम में, बट देन आफ्टर ऑल्सो अगर कुछ बाकी रह गए हैं तो देन इनका इरिप्सिन एंजाइम की हेल्प से, जो कि इल्यूम में सिक्रीट होता है, ये क्या करते हैं, पेप्टोज जो होते हैं उनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। देन आफ्टर माल्टोज होता है जो कि कन्वर्ट करते हैं, माल्टोज जो सिक्रीट हुआ था उसको ग्लूकोज में, दैट इज शुगर में। और ये शुगर क्या होता है, उसी समय यूज कर लिया जाता है, या तो डाइजेशन प्रोसेस हो रहे हैं उसमें, या फिर शरीर के डिफरेंट फंक्शंस में जो भी एनर्जी लग रहा है उसमें वो एंजाइम, वो माल्टोज से जो शुगर कन्वर्ट किया था उसका यूज हो जाता है। अदरवाइज अगर उससे भी एक्सेस है तो इनको कैरी करके ब्लड वेसल्स लेके जाते हैं लीवर के पास, और लीवर ग्लाइकोज को ग्लाइकोजेन में ग्लूकोज को, इट मीन्स शुगर को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखता है। इसका यूज तब होता है जब हम लोग फूड नहीं लेते हैं, अदरवाइज फास्ट टाइम में होते हैं, फिर भी देखिएगा कभी कभी हमारे शरीर का जो एनर्जी लेवल होता है वो कम नहीं होता है, बिकॉज हमने बहुत सारे जो भी एक्सेस ग्लूकोज होते हैं, शुगर होते हैं, उसको स्टोर करके हम लोग लीवर में रखते हैं, और ये ग्लाइकोजेन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके जब यूज करना होता है बॉडी यूज कर लेता है। ओके, सो अब नेक्स्ट जो हमारा एंजाइम है वो है लैक्टोज, जो कि कन्वर्ट करता है लैक्टोज को ग्लूकोज में या फिर ग्लैक्टोज में।
ओके। फिर मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दे रही हूँ। उसके बाद सुक्रोज भी होता है यहाँ पे, जो कि कन्वर्ट करते हैं लैक्टोज को ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में। क्रोज भी होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं सुक्रोज और ग्लैक्टोज को फ्रुक्टोज में, क्योंकि ये प्रोसेस, ये एक इक्वेशन है जो कि अभी ये बना, फिर नेक्स्ट में इसमें कुछ ऐड करके कुछ और बनाएंगे, कुछ और केमिकल्स देंगे, इनका कंप्लीट डाइजेशन, किसी भी तरह से हमको बेसिक जो एलिमेंट्स चाहिए वो हमें निकालना है। ओके। सो देन आफ्टर लाइपेज है सबसे लास्ट में एंजाइम, जो कि कन्वर्ट करता है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट न्यूट्रिशन का जो हुआ डाइजेशन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमच में मिलके, एंड उनका एब्जॉर्प्शन जो हुआ, एब्जॉर्प्शन का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इनर वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विली बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको पूछेगा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो दिस इज कॉल्ड विली। हमेशा आप याद रखिएगा। 2-3 क्वेश्चन स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत जरूरी है। फाइनल डाइजेशन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन का कंप्लीट प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता किसके हेल्प से है? तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बिली जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर के वाल पे। इनर लाइनिंग जो होता है कैनाल का वो विली से घिरा हुआ होता है और जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, सो let's look about something else, that is about the small intestine. The digestion starts from mouth and completes into the small intestine. पहले भी मैंने जैसे ही टॉपिक स्टार्ट किया था उसी समय मैंने ये चीज डिस्कस किया था आपसे। The digested food consists of monosaccharides, amino acid, fatty acid and glycerol. जो भी फूड कन्वर्ट हुए या फिर डाइजेस्ट होके एकदम ब्रेक डाउन होते हैं, जिनका कि अब एब्जॉर्प्शन होना है ब्लड कैपिलरीज से, जो कि प्रेजेंट है बिली के वाल में, उसमें जो न्यूट्रिशन स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन होते हैं दैट इज मोनोसैकेराइड, जो कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। देन आफ्टर अमाइनो एसिड, प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, फैटी एसिड जिसको हमने फैट्स को कन्वर्ट करके फैटी एसिड में रखा है, और ग्लिसरॉल जो कि फैट्स और स्टार्च का है। All this digested food is absorbed by the length of small intestine in the ileum. So this is whole about the digestion process and the absorption process which completes inside the small intestine. Hope you all liked this video. If you liked it, then please press the like button, share it with your friends and subscribe my channel. And guys, be with me for the next organ of the alimentary canal, that is the large intestine, and after that the process of digestion or the alimentary canal will be finished. So guys, we will continue in the next video with the large intestine. Thank you so much for watching my channel.